الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ ہدایت کی دولت ہوتی ہے۔ اس کے پاس جو سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے وہ تقوی کا، پرہیزگاری کا اور اللہ کے خوف کا خزانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ہدایت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے دور ہٹ جاتے ہیں، ان کے پاس ذاتی گوشت پوشت تو باقی رہ جاتا ہے، لیکن روح کا سکون، قلب کا قرار، یہ چیزیں ان سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان رہتا ہوں، تو اس کا پس منظر یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی روحانی زندگی بے آباد ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی عادات خراب ہوتی ہیں نا، ان لوگوں کے سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈھیروں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کی ماں بھی پریشان رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں اس کا کیا اعتبار کروں، یہ میری خدمت کے بارے میں بھی کوئی بات صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ اس کی بیوی ساری زندگی عدم اعتماد کا شکار رہتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ڈینگے مارتا ہے، یہ غلط آدمی۔ انسان کی بری عادات اس کو توڑ کے رکھ دیتی، وہ اپنوں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش اور پریشانی بن جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی عادات سنور جاتی ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک درخت نہیں، وہ ایک انسان نہیں، وہ ایک انسان نہیں، پھر وہ ایک انجمن بن جاتا ہے۔ وہ ایک اتنا بڑا درخت بنتا ہے جس کے سائے میں اپنے بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیگانے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنی ذات میں ایک پوری انجمن رکھتا ہے جس کے فیض سے بے انتہا لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ کئی اور بھی آ کے اپنے نہیں ہوتے، پر وہاں تھوڑی دیر چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں، انہیں پھل کھانے کا موقع بھی ملتا ہے، اور اگر کبھی مانگ لیں تو درخت ان کی جھولی بھر بھی دیتا ہے۔ شجر سایہ دار، جن کی عادات سنور جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، وہ سارے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے آئے، عادات سنوارنے آئے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو قباحتیں ہیں، تم نے خود اپنے لیے جو بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہیں، انہیں چھوڑ دو، بچ جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور جب سلسلہ نبوت کو ختم کیا تو امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام ہدایت کا عالمی منشور لے کے دنیا میں آئے، اور پوری دل جمی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ، اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میرے نبی کریم نے اس پیغام کو پہنچایا۔ ایک تو ہے دل جمی، دل سوزی، ہمت، جد و جہد کے ساتھ دین پھیلانا، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ بے معاذ اللہ بے ہنگم جد و جہد۔ نبی پاک نے منصوبہ بندی والی جد و جہد کی، ایک ترتیب کے ساتھ جد و جہد کی، اور وہ جو پیغام محبت حضور لے کے آئے تھے، اس کے لیے نبی پاک نے کوشش کی۔ ایک ہوتا ہے میری طرح کا آدمی جو تقریر کرتا ہے، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، صحیح ہو جاؤ، ایک وہ شخص ہوتا ہے۔ لیکن ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے۔ کسی نے باہر سے آ کے ابا کو بتا دیا کہ آج میں نے تیرا بیٹا دیکھا ہے، وہ کالج کے باہر سگریٹ پی رہا تھا۔ اب ابا صرف تبلیغ نہیں کرتا، اماں صرف تبلیغ کر کے نعرے لگوا کے چپ نہیں کرتی، بلکہ وہ سمجھاتی بھی ہے، اور رات کو مصلے پہ بیٹھ کے روتی بھی ہے، یا اللہ میرا لال ہے، مہربانی کرنا۔
खुदा बंदा करम फरमा दे, अल्लाह इसे संवार दे। वो रोती है, वो तड़पती है। वो जब किसी पीर साहब से, मुफ्ती साहब से, अल्लामा साहब से दुआ करा रही होती है ना, तब भी रो रही होती है, जनाब दुआ कर दे अल्लाह इसे हिदायत दे दे, ये संवर जाए तो मैं ठंडी। बहुत सारे ऐसे तकरीर करने वाले लोग होते हैं कि जिनके अंदर होता है जज्बा, बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं कि जो बस ठीक है वक्त गुजारना है, 1 घंटा बात कर दी है, वो जज्बात नहीं होते, वो दर्द नहीं होता। लेकिन जब कोई अपना बिगड़ता है, जब किसी अपने की शिकायत आती है तो बाप के आंसू गिरते हैं, वो दर्द होती है। मेरे रसूल करीम नबी रहमत आकाए दो आलम महबूब दो आलम अलैहिस्सलाम, तबलीग का अंदाज ये था कि दिन को तबलीग करते थे उम्मत की हिदायत के लिए, और रात को मुसल्ले पे बैठ के रो के उम्मत की हिदायत के लिए दुआ मांगा करते थे। हुजूर दुआएं भी मांगते, तड़प, ये जो 7 दुआ शामिल होती है ना, ये इखलास का पता देती है। ये कहती है कि नहीं, ये जो मिशन है ना, इसमें कुछ हुस्न है, इसमें कुछ वकार है। और रसूल करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जद्दोजहद के साथ दीन फैलाया। अल्लाह करीम जब हुजूर की बड़ी जद्दोजहद को मुलाज़ा फरमाया तो रब करीम ने फरमाया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, महबूब आप पर इसलिए कुरान तो नाजिल नहीं किया था कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। मुशक्कत के लफ्ज को समझते हैं? एक कैद होती है, एक कैदे बा मुशक्कत होती। कैदे, ये मुशक्कत बड़ा मुश्किल लफ्ज है। मुशक्कत मतलब हम तो पढ़ जाते हैं ना कुरान पाक, लेकिन समझते नहीं। लफ्ज मुशक्कत यानी कैदी के पैरों में और हाथों में जंजीरें और बेड़ियां भी होती हैं और चक्की भी पीसनी होती है। वो कैद मुश्किल होती है। एक होता है काम करना, एक होता है मुशक्कत वाला काम करना, जद्दोजहद वाला काम करना, शराबूर होना पसीने में। रसूल पाक ने 20 मिनट 25 मिनट एसी वाले कमरे में बैठ के और पजारों में आके और जनाब नारे लगवा के और हटो बचो की दास्तानें करके दीन की तबलीग नहीं की, बल्कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए मुशक्कत फरमाई है। दीन के लिए मुशक्कत ले तश्का, महबूब आप तो मुशक्कत में पड़ गए, जद्दोजहद की। हुजूर के दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि ये लोग संवर जाएं, ये लोग बदल जाएं, इनकी आदत ठीक हो जाए, इनमें तब्दीली आ जाए। ये तड़प थी नबी करीम की। अब ये तड़प नहीं होती, अब तड़प ये होती है कि मेरे साथ सेट है ना। बहुत सारे लोगों को तो लोग तबलीग ही नहीं करते कि कोई बात बताई तो ये नाराज हो जाएगा। बड़ा सख्त एक दिन एक शख्स मुझसे नाला हुआ, बड़ा सख्त। मैं जिला अटक में था तो उसने मुझसे सलाम ली। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि हुजूर ने काफिर के साथ कभी रुख नहीं मोड़ा, लेकिन एक हुजूर के गुलाम ने सोने की अंगूठी पहन के नबी पाक से सलाम लेनी चाहिए थी। अल्लाह के रसूल ने तवज्जो फेर ली थी। तो बड़ी सख्त बात है ना कि रसूल रहमत अगर कहें कि तेरे साथ हाथ ही नहीं मिलाना। तो वो साहब आए तो मेरे साथ सलाम लेने लगे, तो मैंने कहा ये सोने की अंगूठी उतार लें। क्या करें, मतलब ये कि आप कमजोर हैं, आप किस हद तक बात कर सकते हैं। लोगों की अपनी बात कबूल करने का भी अपना अपना जाविया है कि ये मेरे मतलब किया तो ये कबूल है, तो ये मेरी तबीयत नाजा पे, मेरे मिजाज गिरामी पे गिरां गुजरी है, तो लिहाजा मैं इस लफ्ज को कबूल नहीं करते। बस मैंने कहा मियाँ उतार लो। कहने लगा जनाब आप तो बस सख्त बातें कर देते हैं, मेरे पीर साहब ने तो मुझे नहीं कभी मना किया कि ना पहन। मैं क्या पीर नू भी मिला, मैं उन्होंने भी समझावा, मेरी मुलाकात करा। ये कौन सी पीरी मुरीदी हुई कि बाकी सारे काम लेना और दीन के बारे में कोई लफ्ज भी ना अदा करना कि नमाज पढ़ रोजा रख, ये बताना ही ना। ये क्या मतलब, धंधा है कोई? ये कोई धंधा है? गोरख धंधा है? नजराना टाइम पे वसूल करना और उसे कभी ना कहना कि अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जा, अपने तवाफ कराए जाना और बैतुल्लाह का रास्ता ही ना दिखाना। क्या मतलब है इन बातों? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह नारा नहीं लगाया कि सड़कें पक्की होंगी, यूनिवर्सिटियां बनेगी, बल्कि मेरे महबूब ने फरमाया हम इंसानों की तामीर करेंगे, हम अखलाक संवारेंगे, हम किरदार में पुख्तगी लाएंगे। और रसूल पाक की यह तड़प थी मेरे नबी की कि लोग दोज़ख में ना जाए, जहन्नम में ना जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते तुम उन पतंगों की तरह हो जो आग की तरफ जाते हैं, और मैं उसकी तरह हूं जो पकड़ पकड़ के सीना बंद से खींचता है और कहता है जहन्नम से बच जाओ, जहन्नम से। आप कुरान और सुन्नत को पढ़ें, नबी पाक ने झूठ की मुजम्मत पर बातें बयान फरमाई, शराब ना पियो दलाइल दिए समझाया, जिना, बदकारी, बददयानती, चुगली, गीबत, यानी मेरे रसूल पाक ने हमें वो सारे रास्ते बतला दिए कि ये सारे दोज़ख की तरफ जाते हैं, इन पे ना चढ़ना। और उस सड़क का भी पूरा पता बतलाया जो सीधी जन्नत के दरवाजे के आगे जाती है। हर जगह हुजूर ने रहनुमाई की ताकि अल्लाह के बंदे जहन्नम में, समझ आ रही है मेरी बातों? सबसे ये बड़ी फिक्र करते हैं ना, बच्चा सियाना हो जाए, पढ़ जाए, थोड़ी सी ये भी फिक्र किया करो कहीं दोज़ख में ना चला जाए। ये भी थोड़ी टेंशन ले लो किसी वक्त कि कहीं बच्चा और बच्ची जहन्नम में न चले जाए, ये भी टेंशन ले लो, ये भी परेशानी का मौका है।
इस पर भी थोड़ी गौर करो। मेरे रसूल करीम नबी रहमत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते। बड़ी खूबसूरत बात है। हुजूर बैठे थे, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक शख्स आया, हम भी हुजूर के साथ बैठे थे सहाबा। बड़ी प्यारी बात है, इसको अगर समझ गए ना तो आज का सारा मजमून आपकी समझ में आएगा। आज हमारे यहाँ पता पढ़ा लिखा कौन होता है? जो ये कहता है कि गांव सारे जाहिलों का है, ये कह के जान छुड़ाना आसान। अनपढ़ है जी, इनको क्या पता, जाहिल है जी सारे। ओ मियाँ तू पढ़ा लिखा है? मौला अली शेर खुदा से किसी ने कहा था हुजूर सियाना कौन होता है? फरमाने लगे अक्लमंद वो होता है जिसे जाहिलों से गुजारा करना आ जाए, जिसे अनपढ़ लोगों के बीच रहने का सलीका। मैंने बीए किया है, मैंने बीबीए किया है, मैंने एमबीए किया है, या मैं 2 4 5 बड़े लोगों में सियाना हूं, ये जाहिल है सारे। सुभान अल्लाह। ये कह के जान छुड़ाना तो आसान है, लेकिन किसी जाहिल को दीन की तालीम देना मुश्किल है, उसे आदाब जिंदगी सिखाना ये मुश्किल है। जो लोग रोज ट्रैवल करते हैं ना जहाज में, उनको पता होता है सीट कौन सी है, बैठना कहाँ है, आना जाना का सारा पता होता है। तो मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि वहाँ मैंने बहुत सारे नौजवान देखे हैं, बिलखुसूस हज उम्रे की फ़्लाइट्स में अनपढ़ बुजुर्ग बूढ़े बाबे देहातों के, जब वो चढ़ते हैं ना उसको नहीं पता सीट नंबर कौन सी है। वो हम तो बस में बैठने वाले लोग हैं भाई देहाती, तो बस में तो जो सीट खाली होती है उस पर बंदा बैठ जाता है, तो बुजुर्ग कई दफ़ा बैठ जाते हैं। अब वो जो नौजवान उस मोहल्ले का उस इलाके का है ना, वो मजाक उड़ा रहा होता है, देखो यार क्या हमारी को ये पता ही नहीं जी, अनपढ़ है जी, खबर ही नहीं। और मैंने कहा वो तो अनपढ़ है लेकिन बड़ा जाहिल इस वक्त तू लग रहा है, इस वक्त बड़ा जाहिल और अनपढ़ तू लग रहा है। अगर तू होता पढ़ा लिखा तो जब तूने अपने इलाके का बूढ़ा देहाती बाबा देखा था तो उठ के जहाज के दरवाजे पे जाता, उसका बाजू थामता, उसका सीट नंबर देखता, उसे बिठा के आता, उसे बेल्ट बांध के देता, पानी का गिलास पिलाता, और फिर तो उसे कहता बाबा जी मैं उस सीट पे बैठा हूं, कोई जरूरत हुई तो मुझे दोबारा भी बुला लीजिए। ये तो तेरी तालीम का पता चलता ना कि अब तू पढ़ा लिखा है, अब तू सियाना है, अब तू समझदार है, अब तू बाशऊर है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला हज के काफिले के साथ ले जाता है तो मैं अपने दोस्तों की एक ट्रेनिंग करता हूं। मैं कहता हूं बस ना दाएं बालें वालों को हौसला देते रहो, बस बूढ़ों को। यहाँ लोग बता देते हैं कि हज पे तो बस बंदे फौत होके आ जाते हैं, बस सारे माफिया मांग के चाहो बच के नहीं आना। तो मैं कहा करता हूँ ये गलत बात है। हाजी तो अल्लाह का मेहमान होता है, हाजी अल्लाह का मेहमान होता है, तो रब अपने मेहमान की बड़ी ही मेजबानी फरमाता है, बड़ा करम करता है। हौसला दें, प्यार करें। सुने जो रवायत अर्ज करने जा रहा हूँ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम बैठे थे, एक शख्स ने आके कुछ सवाल किया, बद्दू था, अनपढ़ था। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दीजिए। हुजूर ने कुछ दिया, शाम का वक्त था। जब हुजूर ने दिया ना तो कहने लगा मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, आपने तो माज़अल्लाह कुछ भी नहीं दिया। ये क्या दे रहे हैं? मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी आपकी। जब ये लफ्ज उस शख्स की जुबान से निकले, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर, तो जनाब उमर फारूक ने तलवार उठा ली, मैं तेरी गर्दन काटूंगा, तू गुस्ताख है। नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया उमर जल्दी न कर, टाइम दे थोड़ा, जल्दी न कर। हुजूर घर ले गए, घर में से और बड़ी सारी नेमतें दी, और दिया और दिया और दिया। जब हुजूर देते गए तो कहने लगा हुजूर बस करे, मैं तो उतना उठा के भी नहीं ले जा सकता, बस करे। फिर फौरन बोला, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु